Hello friends, today we'll be discussing Economic Survey Chapter 1. In my last presentation, I have already discussed with you guys Economic Survey, the introduction. So in that presentation, you have been told very clearly why you need to study Economic Survey, what is the importance of it, why it is vital for your prelims as well as mains, and in details you have studied what is this document carries, the comparison with the union budget, and what is the theme of this year survey. So now we'll straight away move to the chapter 1 of this document, and which itself talks about the theme which I have discussed in my last presentation. In case you have not gone through that, it would be very wise of you to go through that, the introduction presentation of mine, and then come to this uh, video. Fine. So it would give you more clarity on the subject. So we'll straight away go to the topic. So as I have already discussed that Economic Survey's theme is wealth creation. So over here I am giving you an historical background in terms of how this wealth creation we have been following over the years. Fine. This has been something, ethical wealth creation is there in our in our roots, that we have been practicing this. So इसीलिए over here you can see more than 3/4 of known economic history, India has been the dominant economic power globally. ठीक है. तो whatever we have seen over the years, that that in terms of our economic history, we have been a dominant power globally, we can say. Right? Economically, when we're talking about the finances in terms of wealth. ठीक है. So whatever we know about it, that we have been a dominant in a dominant position all throughout, and India has been a major wealth creator as well as contributor to world's GDP. Fine, ये self understandable है. तो इसका जो मैंने आपको बोला हिस्ट्री है हमारी एथिकल वेल्थ क्रिएशन की, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था. You have this Kautilya's Arthashastra, this book, and this Thiruvalluvar's Thirukural, a Tamil poet. So in both these texts they have mentioned the importance of ethical wealth creation, and they have very openly said that ये हमारे ट्रेडिशन में रहा है, ओल्ड एंड रिच ट्रेडिशन में एथिकल वेल्थ क्रिएशन. ठीक है. एंड वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस ओवर सेंचुरीज. ठीक है. तो ये जो हमारा जो इस बार का थीम है कुछ नया नहीं है. इट इज़ समथिंग विच वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ओवर द ईयर्स. अब हमने कैसे प्रैक्टिस किया है इन इन एंशियंट टाइम्स, कैसे प्रैक्टिस किया है, विल बी स्टडिंग अबाउट दैट लेटर. ठीक है. तो इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है ओवर द ईयर्स सिंस एंशियंट इंडिया, हमने रिलाई किया है वेल्थ क्रिएशन पे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन पे. तो वेल्थ क्रिएशन पे किया है तो डेफिनेटली उसके जो दो पिलर्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट अलॉन्ग विद द हैंड ऑफ ट्रस्ट, जो कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट में आपने नाम ने पढ़ा होगा अपने, वेल्थ क्रिएशन द इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. तो इसलिए अगर हम कह रहे हैं हमने एथिकल वेल्थ क्रिएशन पे फोकस किया है, मतलब हमने इन दो पिलर्स पे फोकस किया है सिंस आर एंशियंट टाइम, दैट इज़ द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट. अब ये दो जो चीज़ें हैं यही इंपॉर्टेंटली आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी, बिकॉज यही दो पिलर्स के बारे में आपको स्टडी करना है. ठीक है. सो नाउ वील मूव फॉरवर्ड. अब पहले समझते इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट ये है क्या. ये एडम स्मिथ की थ्योरी है. जैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि जो इनकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस, उससे हमने ये वेल्थ क्रिएशन, द आइडियोलॉजी इज़ फ्रॉम दैट बुक इटसेल्फ, वेयर एडम स्मिथ हैज़ क्लियरली शोड और द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. ठीक है. तो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट क्या है. इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट होता है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो लेज़र फेयर इकोनॉमी है, उसको हम इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं, इसकी ये थ्योरी क्या है कि जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है देयर इज़ वेरी लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड द गवर्नमेंट डजेंट हैव लॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं है, पेनल्टीज ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, मार्केट कौन कंट्रोल करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्रोडक्ट्स डिसाइड होते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन होगा,
प्लस उसके प्राइजेस कैसे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का, कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब फ्री एंट्री और एग्जिट है। मतलब आप देख सकते हो इंडिया में भी वी हैव अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ, आप अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन में जाना चाहते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना होते हो, although you have to get the clearances, but you are free to do that. There's no one stopping you. You cannot be stopped. If you want to get into, you know, आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना है या फिर आपको और भी किसी भी चीज़ में जाना है, आपको किसी की कोई चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, यू आर गेटिंग इनटू प्रोडक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ नूडल्स और एनीथिंग, तो आप वो आराम से कर सकते हो. नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप यू. फाइन. तो उसी को बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी में द कंज्यूमर्स आर फ्री to choose what they want to consume, and the producers and manufacturers are free to choose what they want to manufacture. ठीक है. तो ये होता है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी. मतलब गवर्नमेंट किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाती है कंज्यूमर्स के ऊपर कि नहीं आपको यहीं से सामान खरीदना है, या प्रोड्यूसर्स को कि ये आपको यही सामान बनाना है. ठीक है. इसी को हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजर फेयर इकोनॉमी. दिस हैज़ बीन गिवन बाय एडम स्मिथ. तो उन्हीं का है कंसेप्ट इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, कि मार्केट के अंदर कुछ इनविजिबल फोर्सेज है जो मार्केट को कंट्रोल करती है. दैट इज़ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब अगर आप मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं लगाओगे, आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की होती है जो कि काम में आते हैं. मतलब क्या होता है, अननेसेसरी प्रोडक्शन नहीं होगी, बिकॉज प्रोड्यूसर्स वेरी वेल नो कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, और कंज्यूमर्स को भी पता है मुझे किससे खरीदना है, क्योंकि कंपटीशन है, ज़्यादा प्लेयर्स है. जब ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं तो क्या प्राइसिंग अच्छी होती है. ओके. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 ऑप्शन है कोई किसी भी चीज़ के, तो आप डेफिनेटली ये सिलेक्ट करोगे ना कि कौन सा सबसे कम में दे रहा है. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू परचेज बुक्स ऑल्सो, यू गो एंड सर्च इन 4 डिफरेंट स्टॉल्स एंड देन यू सिलेक्ट ना कि हाँ आई गॉट टू परचेज इट फ्रॉम हियर, जो आपको सबसे बेस्ट प्राइस देता है. वो क्यों देता है? बिकॉज ऑफ दिस फ्री मार्केट इकोनॉमी. फाइन. आप कोई भी बिजनेस में एंट्री कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आप अपने हिसाब से आप उस चीज़ में काम कर सकते हो जो कि अभी ज़्यादा डिमांड में है. और उसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के बिजनेस में लग जाते हैं तो कंज्यूमर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ उनको इफेक्टिव प्राइसिंग मिलता है. दे आर इन अ बार्गेनिंग सिचुएशन. तो यही है बेनिफिट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, कंज्यूमर्स का बेनिफिट होता है सबसे ज़्यादा, उनको बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं लोएस्ट प्राइस में. ठीक है. सोसाइटी का बेनिफिट होता है, और प्लस प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स का भी इसलिए भला होता है बिकॉज दे नो व्हाट दे गॉट टू प्रोड्यूस, और डिमांड के बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन को ऑल्टरनेट चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो यही है इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी. फाइन. तो इसीलिए मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, शायद उस टाइम आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा कि हमने ओवर द ईयर्स जो हमने एथिकल वेल्थ क्रिएशन किया है दैट इज़ बेस्ड ऑन इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट. मतलब एंशियंट टाइम से हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही भरोसा किया है, और उसी को लेके हम आगे बढ़े हैं. ठीक है. ऑल्दो हमारा जो एक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. हमने नहीं किया, ऐसा नहीं है. वी हैव ऑलवेज बीन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहे हैं, एंड जो प्रोडक्शन हुई है इट हैज़ बीन फॉर द डिज़ायर्ड गुड्स एंड कंज्यूमर्स हैव गॉट द मोस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ओवर द ईयर्स. सो ये आपको इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट समझ में आ गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी. और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो जिस मार्केट इकोनॉमी में बिजनेस पॉलिसीज़ प्रो बिजनेस होती है उसको हम फ्री मार्केट बोलते हैं. मतलब गवर्नमेंट अननेसेसरीली रेगुलेशंस नहीं लगाती है, दे डोंट फोर्स यू to produce a certain type of good. No, they don't do that. Everything depends on the forces of demand and supply. जो consumers को चाहिए उसी हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं. ठीक है. तो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट आप लोग को समझ में आ गया होगा. देन वी मूव टू, जो मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि हमारे वेल्थ क्रिएशन के 2 पिलर्स हैं. इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट दैट इज ओपननेस इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आप उसको बोल सकते हो, या फिर फ्री इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हो. दे आर वन एंड द सेम थिंग. हाँ. जो सेकेंड चीज़ जो है एथिकल वेल्थ क्रिएशन की जो मैं बात कर रही हूँ शुरू से, उसको हमको कैसे लेके आना है, हैंड ऑफ ट्रस्ट. इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट को हैंड ऑफ ट्रस्ट को सपोर्ट करना है. इसका मतलब क्या है कि ओपननेस होगी, मार्केट इकोनॉमी होगी, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए.
इट शुड नॉट बी लाइक कि अगर आपको इतना लीनियंसी दी गई है इन टर्म्स ऑफ आप इकोनॉमी जो ये ना इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू ब्रीच ईच अदर ट्रस्ट। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कुछ इस तरीके की एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में लग जाए, दे ट्राई टू किल कॉम्पिटिशन, या फिर एक काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक नेचर आ जाए मार्केट का कि वो नए लोगों को आने ही नहीं दे मार्केट में और खुद ही पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर ले, या फिर अ काइंड ऑफ क्रॉनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए कि कुछ बड़े प्लेयर्स मार्केट को कैप्चर करके लगे ताकि नए लोग नहीं आ पाए। तो ये होता है हैंड ऑफ ट्रस्ट प्रोड्यूसर के साइड से, और कंज्यूमर के साइड से भी ये कि दे शुड नॉट चार्ज देम अननेसेसरीली। अननेसेसरी चार्जेस कब आते हैं? जब कुछ ही प्लेयर्स हैं मार्केट में वो रेगुलेट करने लगेंगे तो वो कंपटीशन को किल करेंगे। अगर ऐसा होगा तो कंज्यूमर्स को भी बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा, तो हैंड ऑफ ट्रस्ट अगेन ब्रीच हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को आपस में ट्रस्ट बना के रखना है, ब्रीच नहीं करना है, और गवर्नमेंट को एक रेफरी की तरह काम करना है, यहाँ पे एक चेक रखना है कि हाँ जो भी चीज़ें हो रही है इट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ बोथ द साइड्स, फ्रॉम योर डिमांड साइड ऑल्सो, सप्लाई साइड ऑल्सो। एक बैलेंस स्ट्राइक करना है so that we prosper as a nation and we are able to fulfill our domestic needs, and plus we are in a even in a position to export, हम उससे ज़्यादा भी कर पाए, so that we have a name in the we become a global player in terms of जो भी है। So invisible hand of market reflected in openness in economic transactions, very clear free market economy, लेकिन उसके साथ ethics and philosophical dimensions have to be maintained by all the stakeholders, be it the government, be it the producers, be it the consumers। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन के दो पिलर्स है, आई थिंक इट इज़ वेल अंडरस्टूड नाउ। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम इनेबलिंग द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, एज आई सेड यू अर्लियर कि ओवर द ईयर्स वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस। तो कैसे हमने प्रैक्टिस किया है, सेड यू कौटिल्य अर्थशास्त्र में उन्होंने मेंशन किया है। तो कौटिल्य ने चाणक्य ने एडवोकेट किया था इकोनॉमिक फ्रीडम बाय आस्किंग द किंग टू रिमूव ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ही हैज़ ऑल्सो एडवोकेटेड एट दैट टाइम दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लेके ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए। मार्केट में जो भी प्लेयर्स है, जो बिजनेसमैन है, एवरीवन शुड बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस टू देयर एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थिंकिंग में भी ये है दैट वी हैव इनेबल्ड मार्केट्स, और उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमने कैसे उस चीज़ को इनेबल किया है, कैसे इनेबल किया है फ्री मार्केट को, और अदर कैसे इनेबल किया है इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट को। सो पोस्ट लिबरलाइजेशन हमने सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल्स देखा है कि हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी को किस तरीके से रन करके उसके बेस्ट रिजल्ट्स पाए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, राइज इन इंडियाज़ GDP एंड GDP पर कैपिटा। GDP is the measure of our national income. It tells how a country is prospering. ये वो नंबर है नेशनल इनकम का, GDP। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसका एक्सपोनेंशियल राइज, इंक्रीमेंटल नहीं, एक्सपोनेंशियल, मतलब बहुत ज़्यादा राइज हमने देखा है पोस्ट 1991 के बाद। ठीक है, और स्टॉक मार्केट हमारे सेंसेक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से राइज हुआ है उस पीरियड में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रहा है। तो अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट पोस्ट 91 जो इकोनॉमी ओपन किए थे, प्लस जो ओपन सेक्टर्स थे हमारे, जो हमने ओपन किए हैं लिबरलाइज सेक्टर्स थे, दोज हैव परफॉर्म रियली वेल इन कंपैरिजन टू द ओपन सेक्टर। दिस मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अगर ओपन सेक्टर परफॉर्म कर रहा है बेटर क्लोज सेक्टर से, मतलब क्या है, ओपन सेक्टर में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो उनको चॉइस दे रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे कंपटीशन आता है, ठीक है, तो आपको चॉइस मिलती है कि नहीं मिलती है? आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेनी यूज़ करते हो, अगर आप उसके और 6-7 ऑप्शंस अगर आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर यू ना, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट ना व्हेन अ कंज्यूमर हैव अ बेटर चॉइस, दे डेफिनेटली गो फॉर मोर ऑप्शंस, दे ट्राई, दे टेस्ट, दे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से इट बेनिफिट्स ऑल। ठीक है, तो वही है, ओपन सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट है, कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइस मिलता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो फिनेंशियल सेक्टर का, जो बैंकिंग सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर का जो इंट्रोडक्शन हुआ, म्यूचुअल से फंड्स में आप देख सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ बीन ये सब जो सेक्टर्स आपके ओपन हुए थे, इसमें जो इतना जो ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ आया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया,
इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से। तो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हैंड ऑफ ट्रस्ट, हैंड ऑफ ट्रस्ट मैंने क्या बोला था, देयर हैज़ टू बी ट्रस्ट फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, ताकि क्या है तभी हम बेनिफिट उठा पाएंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी का। सो यहाँ पे आई हैव हाईलाइटेड कि फिनेंशियल सेक्टर का जो 2011-13 में जो स्लो डाउन हुआ था उसका रीज़न था बहुत सारे एनपीएस हो गए थे, ठीक है। तो जब बैंकिंग सेक्टर पे स्ट्रेस होता है, एनपीए हो जाते हैं, एनपीए होने का मतलब क्या है, दैट बिजनेस हाउसेज हैव टेकन लॉट ऑफ लोन्स बट दे हैव नॉट रीपेड इट, फाइन। तो इससे क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर का जो ट्रस्ट है बिजनेस हाउसेस में वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी ट्रस्ट की बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये जो इतना जो कोलैप्स हुआ था यहाँ पे हमारा जो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एनपीएस, स्पेशली ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एनपीएस हुआ था, तो उस वजह से क्या हुआ था, हैंड ऑफ ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फील हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत वाइटल है कि बस यही नहीं फ्री मार्केट कर दिया तो एवरीथिंग विल टेक केयर ऑन इट्स ओन, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट इज़ वेरी वाइटल, एवरीवन शुड हैव ट्रस्ट। इफ़ यू हैव टेकन लोन इट इज़ वेरी वाइज ऑफ यू टू रीपे इट ऑन टाइम। और इस तरीके का क्या होता है ना, अगर आप कंटिन्यूसली एनपीएस होते रहेंगे तो बाहर से भी फंडिंग आना रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज क्या हो रहा है, दे आर इन्वेस्टिंग बट द पीपल ओवर हियर आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट द वे इट शुड हैव बीन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, तो इन्वेस्टमेंट ऐसे और कैसे प्रॉस्पर हो सकती है और कैसे लोग फोर्स होंगे टू अगेन इन्वेस्ट इन इंडिया। यू हैव टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, you have to have ease of doing business, this all of these things you must be knowing by now, ठीक है। तो हैंड ऑफ ट्रस्ट को सपोर्ट करना है इनविजिबल हैंड को, देयर हैज़ टू बी ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है, एथिकल डायमेंशन है, देन ओनली यू कैन प्रॉस्पर। और ट्रस्ट के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या काम है, व्हाट दे शुड बी डूइंग इज दैट दे हैव टू सी टू दैट कि ये सब जो ऑपरेशन हो रहा है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, उसमें कोई एक दूसरे को चीट ना करे। अगर कंज्यूमर्स आर चीटेड, मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है, देन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ जाता है। तो जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ जाता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी का रोल रिड्यूस होने लगेगा। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो आपस में, ठीक है। और ट्रस्ट एज अ पब्लिक गुड गेट्स इन्हांस्ड विद ग्रेटर यूज़। तो वो कैसे आएगा, पॉलिसीज मस्ट इम्पावर ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव री इन्फोर्समेंट, ठीक है। हमारी जो पॉलिसीज़ वगैरह है काफ़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसको इन्फोर्समेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तभी हम देखेंगे कि इस ट्रस्ट एज अ पब्लिक गुड इस तरीके से इन्हांस होगा और एवरीबडी इज़ गोइंग टू गेट बेनिफिट। इट इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग ओनली वन, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट सोसाइटी एज अ लार्ज, ठीक है। बिकॉज अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं रहेगी तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिट, the producer are not going to get enough profits, the government is not going to get enough taxes। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ट्रस्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वाई नीड फॉर द हैंड ऑफ ट्रस्ट टू सपोर्ट द इनविजिबल हैंड। दिस इज़ आवर थीम एंड नाउ आई थिंक यू आर वेरी मच अब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि वाई वी हैव दिस काइंड ऑफ अ थीम एंड वॉट इज़ द रेलिवेंस ऑफ दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, फाइन। अब ये सब हमने इसलिए स्टडी किया है बिकॉज दिस इज़ आवर रोड मैप टू अ $5 trillion इकोनॉमी, what we have been talking about. So this is very important. These points are rather, these 5 points are very important and I think all of you should take note of it that $5 trillion इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं किस पे डिपेंड करेगा, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा इस इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट को स्ट्रेंथन करना विद द हैंड ऑफ ट्रस्ट। तभी मार्केट्स हम सपोर्ट कर पाएंगे, तभी वी विल इन अ पोजिशन टू हैव टू अचीव दिस टारगेट, दिस विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो हमारा जो एस्पिरेशन है ये तभी हो पाएगा जब हम इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट को स्ट्रेंथन करेंगे। अब ये टर्म आपके लिए बिल्कुल भी कुछ नया नहीं होगा एंड यू विल वेरी क्लियर दैट व्हाट आर यू राइटिंग, यू नीड नॉट मग अप, फाइन। सो वी हैव टू स्ट्रेंथन द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, दैट मीन्स फ्री मार्केट इकोनॉमी टुगेदर विद द हैंड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अच्छा, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट कभी कैसे स्ट्रेंथन हो सकता है, मैंने शुरू में भी बोला था गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेस होनी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेस होने का मतलब ही है प्रोमोटिंग प्रो बिजनेस पॉलिसीज़, ठीक है। कैसे हम प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ मतलब बिजनेस के लिए जो बेटर पॉलिसी है कैसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ न्यू एंट्रेंट्स, मतलब कंपटीशन होना चाहिए, मैंने शुरू में डिस्कस किया था। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कुछ प्लेयर्स मार्केट को डोमिनेट कर ले बाकी को एंट्री ना मिले, नो।
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बिकॉज जो नए एंट्रेंट्स होते हैं डेफिनेटली दे हैव सम ग्रेटर बेटर आइडियाज़, वो इनोवेशन लेके आते हैं, और इनोवेशन लेके आएंगे तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, और मोर एंड मोर पीपल विल गेट इन टू दैट, दिल बाय दोज प्रोडक्ट्स, तो कंज्यूमर्स का बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ मोर चॉइस। ठीक है, तो न्यू एंट्रेंट्स को एंट्री देना है। इनेबल फेयर कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन फेयर होना चाहिए, मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, कोई बिग बिजनेस हाउसेस को क्रॉनी कैपिटलिज्म नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेट पॉलिसीज दैट अननेसेसरली अंडरमाइन मार्केट्स थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आई हैव एक्सप्लेन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत रिड्यूस होना चाहिए, तभी हम प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे इंडिया में। इनेबल ट्रेड फॉर जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी नाउ एंड देन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जॉब क्रिएट करना है। एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु क्रिएट जॉब्स इन द कंट्री, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होना है, मोर एंड मोर पीपल, सो दैट यू कैन प्रोवाइड जॉब्स टू लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री। एफिशिएंटली स्केल अप द बैंकिंग सेक्टर, डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फिनेंशियल क्राइसिस होने का रीज़न ही ये होता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रेस में होता है बिकॉज ऑफ द अनपेड लोन्स बाय बिजनेस हाउसेस। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर को स्केल करना है, बिकॉज ये सब चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमको बैंक चाहिए, हमको पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो हमको उस बैंकिंग सेक्टर को स्केल अप करना है इन प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए वी नीड द बैंकिंग सेक्टर। फाइन, so now it is very clear why we have studied invisible hand of market, hand of trust, क्योंकि हमें ये अचीव करना है रोड मैप टू अ $5 trillion इकोनॉमी। ठीक है, so with this I end this discussion, chapter 1. so very soon we'll be doing other chapters also, so yeah, with this, thank you.